गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सपोज वी हैव अ मिक्सचर एंड हाउ वी विल फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट मिक्सचर। What kind of a mixture I am talking here? I am talking here mixture of acid, mixture of base, or mixture of acid or base, right? See here, suppose you have a beaker. एक बीकर है आपके पास, उस बीकर में आपने 0.1 नॉर्मल HCl लिया और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 50 मिलीलीटर, राइट? उसी बीकर में आपने दूसरा एसिड लिया 0.2 नॉर्मल का H2SO4, इसकी क्वांटिटी हमने कितनी ली? 25 मिलीलीटर। सो ये जो बीकर है, इस बीकर में 2 एसिड्स प्रेजेंट हैं, दोनों की नॉर्मेलिटी डिफरेंट है, दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है। जब ये दोनों एसिड एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको मिक्सचर कहेंगे। अब हमको अलग अलग एसिड की नॉर्मेलिटी नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर। क्लियर? ओके। सिमिलर वे, like here mixture of acid is there, similarly mixture of base and base can be possible, mixture of acid and base can be possible, right? So first of all we will derive a direct formula. By using this formula we will solve all the question related to find the normality of a mixture. So let's start. How we will derive the formula of this mixture? See here, suppose we have a mixture of acid and acid. Clear? I am representing the normality of HCl with N1 and volume of HCl with V1. Okay? Normality of H2SO4 with N2 and volume of H2SO4 V2. My dear student, recall this formula. Normality is equal to number of a gram equivalent of a solute divided by volume of a solution in liter. हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करके हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर को निकालेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग HCl को लेंगे, HCl एज अ सॉल्यूट। सेकेंड केस में हम H2SO4 को लेंगे एज अ सॉल्यूट। ओके, HCl को अगर हम सॉल्यूट के जैसे लेंगे तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के निकालने पड़ेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। फिर जब हमको HCl और H2SO4 के नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए, देन वी विल टोटली सम अप द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl plus H2SO4 and put in the formula of a normality. In this way we have to find the normality of a mixture. Let's see here. हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के निकालने हैं। सो हमने क्या किया? नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज N1, number of gram equivalent of HCl, right? And volume of a solution of volume of HCl is V1, right? So number of a gram equivalent of HCl will be N1 V1. Number of gram equivalent of HCl is N1 V1. ठीक? Similarly, we have to find number of a gram equivalent of H2SO4. H2SO4 की नॉर्मेलिटी हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We have to find number of gram equivalent of H2SO4 and the volume of H2SO4 representing with the V2. So N2 V2 are the number of gram equivalent of H2SO4. Okay, we already find number of gram equivalent of HCl, we find number of gram equivalent of H2SO4. Now
come to find the normality of a mixture. इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैसे पता करेंगे? By using the same formula, normality of a mixture is equal to number of gram equivalent of HCl प्लस H2SO4. मतलब HCl और H2SO4 के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो मिक्सचर बनेगा. सो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस H2SO4 और टोटल वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर. वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ HCl is V1 and volume of H2SO4 is V2. That is the total volume. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl और H2SO4 हमने यहाँ पर डिराइव किया है, पता किया है. N1 V1 is the number of gram equivalent of HCl, N2 V2 are the number of gram equivalent of H2SO4. So in place of this I will put N1 V1 plus N2 V2 divided by volume of HCl and volume of H2SO4. So this is the formula of normality of a mixture. समझ में आया? हमने सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाले, फिर हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाला. दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर में हमने रखे और हमने नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर का फॉर्मूला डिराइव किया. क्लियर? वी हैव फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड एसिड. सिमिलरली in case of a base and base, similar formula will come. We will take N1 V1 for one base, N1 V2 for the another base, and similarly we will derive the formula for base and base mixture. Now third case is coming. What will happen in case of acid and base mixture? See here, suppose you have a beaker in which acid is there as well as base is there. उसमें acid भी है और base भी है. सपोज एसिड किसी नॉर्मेलिटी का है, बेस किसी नॉर्मेलिटी का है, क्वांटिटी में बी डिफरेंट बट रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज दैट एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द बेस और वी कैन से बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड. जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट एसिड के हैं सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के भी हैं. तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा? न्यूट्रल. वहां पर नॉर्मेलिटी डिराइव करने की या फिर पता करने की कोई जरूरत नहीं, राइट? बट अगर एसिड और बेस के मिक्सचर में फिर से दो केस अराइज होते हैं. पहले अगर नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस के. सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक सॉल्यूशन. इसी का वाइस वर्सा, अगर नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, सो द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन. In first case, what I am telling, number of a gram equivalent of acid is greater than the number of a gram equivalent of a base, right? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. वहाँ पर हम वन सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पर A और B यूज कर रहे हैं. A मतलब एसिड, B मतलब बेस. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक, राइट? अगर यहीं पर नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो यहाँ पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, राइट? अब अगर ऐसे सॉल्यूशन प्रेजेंट है देन हाउ वी विल फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ अ मिक्सचर? सिमिलर, see here, if we find the normality of a resultant acidic solution, what you will do? देखो, suppose यहाँ पर 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के प्रेजेंट है, क्लियर? एंड 30 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस के प्रेजेंट है, क्लियर? 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के प्रेजेंट है एंड 30 ग्राम और वी कैन से 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के प्रेजेंट है. सो 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द 20 ग्राम
equivalent of a base, but rest 20 make the solution acidic. Clear? So see here, यहाँ पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ एसिड माइनस नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर. सो दिस विल बी अ नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर. सिमिलर केस इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ एसिड के क्या है, कम है. तो यहाँ पर सपोज 40-60 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी भी एसिड के हैं, क्लियर, सॉरी बेस के हैं, और किसी भी एसिड के 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी भी एसिड के हैं, राइट. तो यहाँ के जो 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ एसिड, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, they are making the solution basic in nature. So we will find the normality of a mixture. कैसे, NVVV minus NaVa divided by total volume of mixture. Clear? So in this video what we discussed the different cases, how different mixtures are possible, and how we will find the formula to derive the normality of these mixture. Okay, एक बार brief review देखते हैं. Suppose acid और base का mixture है, then we will using this formula N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. If acid number of a gram equivalent of acid are more as compared to number of a gram equivalent of a base in case of acid and base mixture, so we will use the formula NaVa minus NbVv divided by Va plus Vv. Vice versa case, if the number of a gram equivalent of a base are more as compared to number of gram equivalent of a acid, then we will find the normality of a mixture is equal to NVV minus NaVa divided by Va plus Vv. Hope this video clear your concept about how you find the normality of a mixture. In next video we will solve the numerical related to this topic. Thank you and have a nice day.